fibers arising from this ये अब यहाँ पे आप fibers देखो, this is amygdaloid body. The fibers arising, this green line is showing the fibers arising from this amygdaloid nucleus are known as the stria terminalis. And these stria terminalis कहाँ जा रहे हैं? पूरी इनर कर्व लाइन दी है किसको? कार्डियक न्यूक्लियस के नीचे. And they terminate into the septal area, anterior perforated substance and the anterior hypothalamic nucleus. ये भी बहुत अहम PCQ है. What are stria terminalis? The fibers arising from the amygdaloid body and they turn under the cover of the cardiac nucleus and ends into the septal area, anterior perforated substance, not in the posterior perforated substance, and the anterior hypothalamic nucleus. The stria terminalis is the main efferent tract of the amygdaloid body. Main efferent tract of the amygdaloid body. Developmentally, it is related to the basal nuclei, but functionally, it includes in the limbic system. Developmentally, तो हमने इसको amygdaloid body को include किया किसमें? Basal nuclei. और लेकिन अगर functionally बात करें तो यहाँ पे location ही limbic system की होती है. ठीक. अब ये कुछ terminology हैं. The corpus striatum consists of cardiac nucleus and lentiform nucleus. और अगर BCQ में ऐसे आता है, the corpus striatum consists of cardiac nucleus, globus pallidus and putamen. It is also correct because the lentiform nucleus, and lastly you can see that this lentiform nucleus consists of two parts, globus pallidus and the putamen. Amygdaloid nucleus contain only the amygdaloid nucleus. Claustrum is also consisting of only claustrum. What is neostratum and what is paliostratum? I have already told you that the neostratum consists of two parts, cardiac nucleus and putamen, which are functionally related with each other. And remaining globus pallidus is known as the paliostratum. Now the cardiac nucleus, what are the parts of the cardiac nucleus? It is C-shaped. This is the head of the cardiac nucleus. This is the body and this is tail. Large head is present in the frontal lobe. अगर लोब की बात करें तो फ्रंटल लोब में, और अगर लेटरल हॉर्न से रिलेटेड बात करें तो it is present in the anterior horn of the lateral ventricle, while this tail ends in the temporal lobe or in the inferior horn of the lateral ventricle. Now the functions of the basal nucleus. It is concerned with the planning and program of voluntary movements, determine how rapidly a movement is to be performed and how large movement must be, कितना jump लगाना है, कितने जल्दी हमें भागना है. ठीक है. Decrease muscle tone and inhibit the unwanted muscular activity, ये भी इसके function में है. Regulate the muscle tone and thus help in smoothing the voluntary movement activities of the body. Control automatic associated movements like swinging of arm during walking. अगर इस बेसल गैंग्लिया में डिजीज होगी या कुछ होगा तो जो बंदा चलेगा तो अपने जैसे हम नॉर्मली बाजू को हिलाते हैं वो नहीं हिलाएगा. Control group of the movements responsible for emotional expression, control reflex muscular activity. ज़्यादातर इसलिए मैंने साथ में डायग्राम डाली है जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ को शो कर रही है. और ये ऊपर वाली डायग्राम शो कर रही है कि भाई किसी स्पीड से रन करना है, कितना जंप लगाना है, मसल टोन को मेंटेन रखना. अब लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया अगर हो तो उसमें दो आपको हेडिंग्स इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, हाइपरकाइनेटिक एंड हाइपोकाइनेटिक. अगर हाइपरकाइनेटिक हैं तो उसमें जो है वो कोरिया, एथिटोसिस, बेलिज्म एंड हेमीबेलिज्म. अगर हाइपोकाइनेटिक है तो हाइपो मीन कम, काइनेटिक मीन मूवमेंट. काइनेसिया डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट, या तो वो मूवमेंट शुरू ही नहीं कर पाएगा, और अगर शुरू कर लेगा स्पॉन्टेनियसली तो स्पॉन्टेनियसली अगर उसको स्टार्ट किया तो वो उसको स्टॉप नहीं कर पाएगा. ब्रेडी काइनेसिया,
slowness in movements. Brady means slow. Now the lesion of the basal ganglia results in various forms of the unwanted involuntary movement. मैंने जैसे आपको कहा कोरिया, एथिटोसिस, इस डायग्राम में कोरिया दिखाया. Abrupt interrupted speech, involuntary vocalization, involuntary forgetting and unable to maintain an ongoing motor activity. जैसे गाड़ी चला रहा है वो, इसका मतलब वो ड्राइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. अब इसमें देखो ना, लिम्स की कोरिया जो है, क्विक जर्की इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं दैट आर नॉन रिपीटेटिव, स्विफ्ट ग्रिमेसेस एंड सडन मूवमेंट ऑफ द हेड और लिम्स आर गुड एग्जाम्पल. अचानक ही सर को ऐसे झटके की तरह मूवमेंट करना शुरू कर देगा लिम्स की. ठीक, तो ऐसा जो है अगर लिम्स में आई तो फिर वो ड्राइविंग कैसे करेगा, नहीं कर सकेगा. नाउ द एथिटोसिस, ये लिख रहा है लेकिन अगर हाथ की ऐसी पोजीशन हो जाएगी तो फिर वो लिख नहीं पाएगा. एथिटोसिस कंसिस्ट ऑफ स्लो साइनस राइटिंग मूवमेंट दैट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब. डिस्टल सेगमेंट मीन हाथ. डिजेनरेशन ऑफ द, अभी क्यों होता है डिजेनरेशन ऑफ द ग्लोबस पैलिडस अकर्स विथ ए ब्रेक डाउन ऑफ सर्किट जिस बनता है इन्वॉल्विंग द बेसल गैंग्लिया एंड दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स. वो सर्किट जो बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में बनता है, जो कौन बनाता है, ग्लोबस पैलिडस के थ्रू होता है. तो वो, क्योंकि पीछे मैंने जो ग्लोबस पैलिडस के कनेक्शन दिखाए थे उसमें मैंने एक नाम सेरेब्रम का भी लिया था. ठीक है, तो वो ब्रेकडाउन होने की वजह से इस तरीके से डिफेक्ट आएगा. व्हाट इज बेलिज्म? यूजुअली इट अफेक्ट्स द प्रॉक्सिमल लार्ज जॉइंट्स. जैसे ये आप हाथ को देख रहे हो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर हो गया या हिप हो गया. इट इज ड्यू टू दी हेमोरेजिक और इस्केमिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई. पीछे मैंने कनेक्शन में सबथैलेमिक न्यूक्लियाई दिखाए थे क्योंकि वो उसको इनहिबिटरी ट्रांसमिशन भेजता है. कॉजेज द कंट्रालेटरल फ्लिंगिंग मूवमेंट ऑफ वन और बोथ एक्सट्रीमिटीज. ठीक है, इस तरीके से ऐसे मूवमेंट होंगी खुद ब खुद. ऐसे बैठा होगा अपने हाथ को ऐसे झटके लगाएगा, बाजू इस तरफ जाएगी. ऐसे बैठा होगा, टांग को ऐसे करेगा और बार बार ऐसे खुद ही जाएगी. ठीक है. नाउ दी अनदर एग्जांपल इज द पार्किंसन डिजीज, जिसको हम दूसरा नाम है पार्किंसोनिज्म. ठीक है, पैरालिसिस एजिटेंस भी कहते हैं इसको. This disease usually occurs after the age 50 years due to the deficiency of the neurotransmitter dopamine. This is BCQ. Dopamine receptor is present in the neurotransmitters are present in the corpus striatum. Corpus striatum हमने दो चीजों को बोला था, cardiac nucleus and the putamen nucleus. The following a lesion in the substantia nigra or in the nigrostriate fibers. मीन कहाँ का लीजन होगी? corpus striatum में, substantia nigra में या फिर nigrostriate fibers. फीचर्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज क्या होगा? सबसे पहले फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक, जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे होते हो थोड़ा सा झुकते हो इस तरीके से. रिड्यूस्ड आर्म स्विंगिंग, बाजू नहीं हिलाएगा, बहुत कम हिलाएगा. शिफलिंग गैट विथ शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदम उठाएगा और धड़खड़ाता हुआ चलेगा. rigidity and trembling of the extremities, rigidity and trembling of the head. ठीक है, तो इसमें इसका फेस किस तरह होगा? एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, बिल्कुल मास्क लाइक, और लॉस ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. और इस जो ये जो झुक के चल रहा है इस तरह, इसको हम स्टूप वॉकिंग भी कहते हैं. ठीक. अच्छा, फिर व्हाट इज हेमीबेलिज्म? हेमीबेलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ द इनवॉलंटरी मूवमेंट कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ बॉडी. इट यूजुअली इन्वॉल्व द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी मस्कुलेचर एंड लिम्ब सडनली फ्लाइज अबाउट आउट ऑफ कंट्रोल इन ऑल डायरेक्शंस. लिम्ब को पूरी एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में खुद ही घुमाएगा. ठीक है. द लीजन विच इज यूजुअली स्मॉल स्ट्रोक, इसकी वजह क्या होती है? छोटा कोई भी स्मॉल स्ट्रोक हो अगर occurs in the opposite subthalamic nucleus or in connection और इस connection में मेन हमारे पास क्या होगा? Subthalamic nucleus. It is in the subthalamic nucleus that smooth movement
ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रेटेड। सबथैलेमिक का काम है कि वो स्मूथ मूवमेंट इंटीग्रेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के। फिर ये ट्रेमर वाला सवाल भी बीसीक्यू में आता है। ट्रेमर, दिस रिजल्ट्स ऑफ द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन ऑफ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। आपने जनरल एनाटॉमी पढ़ा है कि एगोनिस्ट को प्राइमर्स, एंटागोनिस्ट उसको हेल्प करते हैं ताकि वो, जैसे आप गिलास को उठाते हो पानी पीने के लिए, जब वापस रखते हो तो वो उसके अगेंस्ट जो मसल होती है वो भी उसको स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। द ट्रेमर इज स्लो एंड अकर मोस्ट ऑब्वियसली व्हेन द लिम्स आर एट रेस्ट। ये बीसीक्यू है। एंड इट डिसअपियर ड्यूरिंग स्लीपिंग, क्योंकि सेरिबेलम में भी ट्रेमर्स होते हैं लेकिन वो इंटेंशनल ट्रेमर होते हैं जब हम काम करने लगते हैं। वैसे सही बैठे हुए हैं लेकिन जब अगर गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ में ट्रेमर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ट्रेमर इसमें किसमें, बेसल गैंग्लिया में रेस्ट में भी बैठा है और ट्रेमर हो रहा है, और वो डिसअपियर कब होते हैं, ड्यूरिंग स्लीप। विल्सन डिजीज, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेपेटोलेंटिकुलर, मीन लिवर की भी डिजीज है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की भी, इसको हम कहते हैं विल्सन डिजीज। इसमें आप देखो ये आई के गिर्द एक रिंग बन गई है कॉपर की, इसको हम कहते हैं कैसर फ्लेशर रिंग। Involvement of the lentiform nucleus causes tremor, rigidity, impairment of involuntary movements, but the liver is also affected. क्योंकि lentiform nucleus में तो हमने पढ़ा पीछे क्या हो रहा है, it is also a part of the corpus striatum। जो corpus striatum में हमने पढ़ा डिफेक्ट्स पीछे, वो सारा इसमें आएगा। फिर इसमें लेकिन एडिड चीज क्या है कि लिवर भी अफेक्टेड है। डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन दी कॉर्निया, कंजक्टिवा में नहीं है, किसमें, कॉर्निया में, गिव राइज टू दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉन एज दी कैसर फ्लेशर रिंग। इसके बीसीक्यू आता है कि कैसर फ्लेशर रिंग जो है वो, उसमें डिपोजिशन किस चीज की होती है, कॉपर की, और किस पार्ट में होती है, कॉर्निया में। ठीक है, अब ये भी मुख्तलिफ ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन दिखाएं। बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, कंट्रोल मूवमेंट्स, लर्निंग, हैबिट, कॉग्निशन एंड इमोशंस। और थैलेमस का पार्ट फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्लीप, कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। हिप्पोकैम्पस का मेमोरी एंड नेविगेशन। एमिग्डालॉइड बॉडी जो आपने पढ़ी उसका क्या है, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। और ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को, फटीग को, स्लीप को, सर्कैडियन जो हमारा साइकिल होता है कि भी रात को सोना है, दिन को जागना है। ठीक है, इस तरह इसको कंट्रोल करता है। अब ये बीसीक्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न द बेसल न्यूक्लिया और गैंग्लिया। कार्डेट न्यूक्लियस एंड द रेड न्यूक्लियस फॉर्म द न्यूस्ट्रेटम। नहीं, न्यूस्ट्रेटम हमने कहा था कार्डेट न्यूक्लियस एंड द प्यूटामेन। द हेड ऑफ द कार्डेट न्यूक्लियस इज कनेक्टेड टू द प्यूटामेन, ये सही है। अगर इसको पढ़ें, टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसल न्यूक्लियर, नहीं, हमने 4 ही पार्ट पढ़े थे। कौन से, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, क्लास्ट्रम, कार्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इंटरनल कैप्सूल्स लाई लेटरल टू द ग्लोबस पैलिडस, नो, मीडियली था। द बेसल न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट मैटर, नो, दीज आर द ग्रे मैटर कलेक्शन इन द व्हाइट मैटर ऑफ cerebral hemisphere. A 46-year-old male has resting tremor, shows slow movement and posture instability. His disease is associated with decreased level of certain neurotransmitters in the brain. In which part of the brain region the majority neurons are secreting this neurotransmitter are located? डोपामीन की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है हमारे पास, in which part of brain region majority of the neurons secreting this neurotransmitter, सबसे ज्यादा किस में सिक्रेट होंगे, सबस्टेंशिया नाइग्रा। कुछ बीसीक्यू आप खुद भी सॉल्व करें। Which of the following is not component of the basal ganglia? आपने 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, अब इसमें से आप खुद बताओ कि भी इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी आप जाके डिस्कशन देखें कि क्लास्ट्रम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, प्यूटामिन में कौन सा है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में कौन सा है, तब सब थैलेमिक न्यूक्लियस में कौन सा है। ठीक है, ये होमवर्क है। थैंक यू बेटा। दिस इज ऑल अबाउट
बेसल गैंग्लिया। ऑल अबाउट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी अगर हम बेलिज्म हेमीबेलिज्म डिजीज में जाएं इसकी बहुत सारी डिटेल है।